Sir, you will send that test solutions today only or tomorrow? Tomorrow, I'll be sending it tomorrow. Yeah, Okay. so in the previous lecture, we were studying the component part. Okay, and I told each and every student to memorize these values, these angles. I explained Ah, it earlier before this lecture that you need to remember all these values 37 degree, 45 degree, all the sine, cos, and tan values you need to remember. Especially sine and cos are more important when we discuss the resolving of forces. So हमने resolving of forces discuss किया था. What is the use of resolving of forces? To check in which direction which force is actually acting. ये हमने पूरा डिस्कस किया हुआ था रिजॉल्विंग द फोर्स. अभी after resolving the force we need to calculate the total force also. Okay, so let's come to the today's lecture. So today we'll be discussing, in the previous lecture we discussed how to resolve a force in its two component. Now today we'll discuss how to calculate the net force. Okay, so calculation of net force, I'll say net force. So net force का मीनिंग क्या है? अगर प्रीवियसली मैं बात करूं, प्रीवियस पार्ट में तो हमने क्या किया था, सपोज एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है एट सम पर्टिकुलर एंगल. क्लियर? ये फोर्स लग रहा है तो हमने क्या किया था, टू चेक कि इन विच डायरेक्शन इट विल फील हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स, हमने क्या यूज किया था, रिजॉल्विंग टेक्निक. सो हमने इस फोर्स का, लेट से ये एंगल था थीटा, तो हमने क्या किया था, इस फोर्स के कंपोनेंट कर लिए थे. तो यूजुअली एक्चुअली द फोर्स वाज एट दिस एंगल, बट हमने उन्हें दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया. वो कंपोनेंट क्या होते हैं जिसके साथ थीटा गिवन है, दैट कंपोनेंट इज एफ इनटू cos theta, and the other one is f into. F into sine theta. So what this thing is called, this is resolving. Okay, so this one is resolving. Now अभी हमें क्या पढ़ना है, net force, which means suppose there is an object and multiple forces are working. So let's say those multiple forces are, this is f1, this is f2. Okay, so now you know what will be the net force. F1 Is plus it tough? No, it's very easy now. What is the net force? F1 plus F2. F1 plus F2. Why I have directly added these? Because they are in same Sir, direction. because they are in same direction only. Yeah, so because of same direction we can just directly add it up. Now अभी थोड़ा सा change कर देते हैं. Let's say F1 is working in this direction and F2 is working in this direction. So what will be the net force now? F1 minus F2. F1 minus F2. F1 minus F2, because they are in opposite direction. Now what will happen if the forces are at 90 degree? So if this is F1 and let's say this is F2. Clear? So now I guess you already know the answer, but can someone tell how we'll calculate the net force in this scenario? Can I tell? Yeah. Sir, the object will move in 45 degree. Okay, not 45 degree. That's not true. So what will happen? I'll explain. First, you need to be clear what is the net force. When two forces are at 90 degree, I already explained it multiple times. When two directional things are at 90 degree, how we get the net? We use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. By root of both magnitudes. Root of squares. Okay, so it will be I can check it. this. Now there is a problem, a slight difference with the direction. There is a slight difference with the direction where it will go. Where it will go exactly? Sir, northeast. No, not northeast. Let me explain where it will go. Let's see. Suppose two forces are acting. This is F1 and this is F2. So for first condition, number one, when F1 is equal to F2. Now you know कहाँ पे जाएगा, exact northeast. Why? Because both the forces are acting equally, so that means it will be at exact 45 degree. Exact northeast it will go. Clear? Any doubt? No. No. Good.
let's say the second scenario, what if the forces are not same? If the forces are not same, F2, this is our F1. Now let's say F1 is greater than F2. So what do you think? F1 Sir, it ज्यादा will होगा go तो in east direction more. या नॉट ईस्ट, वो F1 ज्यादा पुल कर लेगा ना उसको, तो हाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अभी इधर जाता, एग्जैक्ट सेम था तो नेट फोर्स कहाँ पे लगता, बीच में Sir, लगता. अभी F1 डोमिनेट कर जाएगा ना, तो इट विल बी समवेयर हियर. क्लियर? less than 45. Less than 45. Very good. So if this is the theta, net force will be this, and now I can say that theta will be less than 45 degree. Clear? So I guess third one will be also okay to everyone. अगर F2 को ज्यादा कर देंगे तो क्या सिचुएशन होगी? Sir, ज्यादा ये नॉर्थ की तरफ 45 आएगा. इससे ज्यादा. Theta Than will be more than degree 45. Yes, more than 45. More than 45. So that's a small observation that this theta should be greater than this, because F2 is going to dominate here. So F2 will dominate and this will move to this side. F2 is greater than this. So I'll say that this angle, this theta is going to be greater than 45 degree. Now, the main thing. अभी तक मैंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई. आई हैव जस्ट गिवन यू वेयर टू थिंक, मतलब एक गेस बताया मैंने कि क्या होगा एग्जैक्टली. वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज आती हैं वो आती है tan थीटा के थ्रू. किसके थ्रू? tan थीटा के थ्रू. So the formula for angle is, I'll say direction from F1. Wait, just a bit. ओके, सो अगर हमें प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन, सो डायरेक्शन फ्रॉम F1, अगर हमें F1 से डायरेक्शन चाहिए तो क्या करते हैं? फॉर्मूला है tan थीटा. रिमेंबर, फॉर्मूला है tan थीटा, that is F2 by F1. If I am measuring from F1, I need to keep it in divide. ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए? ये फॉर्मूला हो गया हमारा एंगल के लिए कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आने वाली है. सो दैट एग्जैक्ट वैल्यू इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस. Perpendicular or base. Yeah, so it is like a perpendicular in base part. Why? Because perpendicular for angle with F1, perpendicular will feel like F2. Clear? What will happen if I measure the angle from F2? Okay, F2 से अगर एंगल देखेंगे तो फिर क्या सिचुएशन होगी? या It will be F1 by F2. yes, very good. So straight we can just say कि it will be then F1 by F2. तो किसी को कोई डाउट? अभी ये देखो यार, याद रखना पड़ेगा, याद रखोगे तभी बेटर रहेगा. इफ वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन फ्रॉम F2, so let's say डायरेक्शन फ्रॉम, यूजुअली डायरेक्शन फ्रॉम F2 नहीं पूछा जाता है, हमेशा F1 से ही पूछा जाता है. बट इन केस F2 से डायरेक्शन पूछेगा तो सिमिलर पैटर्न, बस उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला. tan थीटा विल बी F1 by F2. ओके, अब पॉइंट ये है कि एंगल निकालेंगे कैसे, एंगल निकालेंगे कैसे एग्जैक्ट. तो ये यार थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें एग्जैक्ट एंगल कैसे निकालना होता है. आपको वैल्यूज पता है ना tan थीटा में? Yes. हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जिसके थ्रू आप चीज़ों को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. डन? Okay, so let's see one example.
सर डायरेक्शन मतलब हमें एंगल बताना है ना? डायरेक्शन मीन्स हमें एंगल पर्टिकुलर बताना है कि फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन एंगल कितना होगा। एंड वन मोर थिंग, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको डायरेक्टली फिगर बना के दे रहा हूँ। एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि आपको ये फिगर बना के दे, एग्जाम में वर्ड्स में लिख सकते हैं दैट अ फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड अनदर फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। सो आई गेस इट इज़ वेरी Yes. सिंपल कि आप देख सकते हो बोथ आर एट हम्म, परपेंडिकुलर। तो ये रखना है, एग्जाम में ऐसा नहीं कि पूरा फिगर बना के ही दूंगा, समटाइम्स वर्ड्स में भी क्वेश्चन हो सकता है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। हाँ यस Now, because 90 degree, what we can do, we can just solve 24 square plus 32 square. Now, you do not need to square these two things. Literally square करने की जरूरत नहीं है. I told you earlier also कि it's better to take something common if there is some common. So what is the common number in 4 this 24 and 32? 4 4, something 8, else? 8, A more 8. than one? 8. Yeah, so I can take common 8, but I know that there is a square. So while taking 8, the common will come 8 square. Okay. Now, if I have taken the square 8 square, how much will remain there? 3 square 3. But there is a square, so 3 square will remain there. And 4 from this square. one, 4 square will remain. So I guess you now you know from 8 square, what will come outside? 8. And 3 square and 4 square are now easy task. How much 3 square is 9, 4 square is 16. So how much it will be? 8 root 16 plus 9 will be 25. So how much will come outside of 25? 5. So it is 8 into 5. So 40 what is the actual answer 40. of 40 Newton? So एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि 24 इंटू 24 करने लगो फिर प्लस 34 32 करने लगो. कॉमन निकालना है। ट्राई टू यूज लॉजिक. या मैंने बार बार बोला हुआ है थ्योरी पे ये आप बेटर है इसको यूज करें. ओके. So ये हुआ हमारा पार्ट. नाउ डायरेक्शन. सो लेट्स से डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट. डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट. ईस्ट ही पूछा है नॉर्थ पूछा है? ईस्ट पूछा हुआ है. ओके. सो डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट मतलब किससे पूछा हुआ है? ईस्ट पे कौन है? 24 वाला. तो मैंने बताया था जो ईस्ट पे उसको कहाँ पे रखेंगे? बेस हो जाएगा ना हाँ वो. इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। tan theta will be, it will be 34, sorry 32 divided by 24. Now solve it. So it 4 will by be 3. 4 by 3 divided by 8. Now I guess you need to understand what is the angle if this is 4, this is 3. You know the diagonal will be 5. What is this angle? 53 degree. 3, 4, 5 is 53. Tan 53 degree. very good. Very good, very good. So this 4 by 3 is a value of tan 53 degree. So I'll highlight it here. It is just a value of tan 53 degree. So here I'll write tan theta is nothing but tan 53 degree. So now you know it is a value of 53 degree, which means angle is 53 degree from east. Is it clear to everyone now? हाँ Yes, Pakka? sir. Yes, sir. सर Okay. वो I'll, एफ का समझ में हाँ नहीं आया. किस चीज का? नेट फोर्स का. हाँ हाँ. नेट फोर्स का हमने बताया ना, अगर 90 डिग्री पे दोनों रहेंगे तो हम कैसे करते हैं? पाइथागोरस स्टाइल पे करते हैं ना, रूट ऑफ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर. ये तो पता है. ये सॉल्विंग नहीं समझ आया क्या?
नहीं सर, वो परपेंडिकुलर हो में नहीं था ना। परपेंडिकुलर में नहीं थे, ठीक है। परपेंडिकुलर फिजिक्स में देखो बार बार आता है पूरे चैप्टर में, इसमें भी और पीछे एक्सेलरेशन वाले में भी हर बार आया है। मैं बार बार बोलता हूँ व्हेन टू डायरेक्शनल थिंग्स, जैसे यहाँ पे हमने फोर्स की बात की, अगर डायरेक्ट है सेम डायरेक्शन में यू कैन ऐड डायरेक्टली, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर 90 डिग्री की डायरेक्शन में तो हमेशा कैसे निकालना है, पाइथागोरस पैटर्न से, हाँ रूट सर, ऑफ समझ दिस गए। स्क्वायर प्लस दिस। ओके गुड। चले, तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम अभी वेस्ट नहीं करूँगा। अब हम अपने एक्चुअल पार्ट पे आते हैं, क्या, फोर्स एंड एक्सेलरेशन वाले पार्ट में। डन। तो हम जब बात कर रहे हैं कि यार किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे, सो देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन। क्लियर। तो हम बेसिकली अभी स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, effect of force on objects and systems। सिस्टम का मतलब आप समझ रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। सो सिस्टम का मतलब है यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, उन पे फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। तो फोर्स का इफेक्ट बताने से पहले मैं सबसे पहले बताऊं यार, फोर्स का इफेक्ट ये होगा कि फोर्स क्या क्या काम कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है। तो हमें बेसिकली स्पीड और डायरेक्शन वाले पार्ट पे ही फोकस करना है। सो ऑल राइट, फोर्स क्या कर सकता है, इट कैन क्रिएट मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर। और लेटर ऑन वी कैन ऐड सॉल्व एक्सेलरेशन विद काइनेमेटिक्स आल्सो। अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं ना, स्पीड, डिस्टेंस एंड एवरीथिंग। सो इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सॉल्व करने में लेट्स से एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, so we can use v is equal to u plus at, we can use s is equal to ut plus half at square, and last one is v square is equal to u square plus 2s। ये सारी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं अगर हमें ये पार्ट गिवन है। डन। तो चले स्टार्ट करते हैं, सीधे इस फॉर्मूले को यूज करना शुरू करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम which part? सर मोमेंटम का पार्ट। Yes, which law? I'll say, Second law. सेकेंड Second लॉ। law. सेकंड। so I'll just directly write ki this one is derived from second law of Newton's second law। हाँ Okay, so I'll write derived from Newton's second law of motion। सेकेंड लॉ। ओके, तो एग्जांपल के थ्रू ही, अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एग्जाम्स में आपको जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वर्ड्स के फॉर्मेट में ज़्यादा लिखा होता है, दैट लेट्स से अ बॉक्स इज बीइंग पुल्ड विद दिस मच फोर्स। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। सपोज अ बॉक्स इज देयर, दिस बॉक्स इज ऑफ 20 kg, okay, it is at a floor। now I'll say some forces are acting on it, let's say there, this is a force of 100 Newton, while someone opposes it with a force of 20 Newton। Clear? Find the acceleration of this box। 4 Yeah, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। yeah, very good। Find the acceleration of this box। So मुझे लग रहा है क्योंकि एकदम नेट फोर्स simple। 80 होगा। Yeah, very good। So point क्या है हमारा यहाँ पर, that net force, how I can calculate, these are at straight, so I can just say कि directly वो minus कर देंगे, so it is 100 minus 20। Clear? How much is the net force? 80, but I know I can write force as mass into acceleration। So always remember what we can do, we can write I should write it like this, that net force is mass into acceleration। now to calculate net force I'll do 100 minus 20, and there this mass will be 20 kg, it is in kg, okay, it should be in kg, remember this answer will be in Newton,
when this mass is in kg and this Kilogram. acceleration is meter per Meter second. per second square. Second square. Yeah. So now it's very clear. 100 minus 4, it will be 80 is equal to 20 into a into acceleration. So I'll say acceleration will be 80 divided by 20, which is 4 meter per second square. तो कोई डाउट? बहुत ही सिंपल है. 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now the next question you need to answer in the chat box. Let's see. Yes, sir. सर सब न्यूटन में ही है ना? या सब न्यूटन में ही है. Okay, very good. Shaili, Anshika, very good, correct answers. Sanskar, very good, correct answer. Adit, not correct. सर वो आपने पहले 30 kg लिखा था ना. Okay, okay. Yeah, got it. So use the 10 kg only. So till now, 3 correct answers are there. Sanskar, Anshika and Shaili. What about others? Solve it fast. ऐसा कुछ बहुत complicated नहीं है. It's straight, very straightforward. अभी क्या point बताया कि this force is at some angle. So what I need to do is calculate its effect ना. I need हाँ to सर, एक्स एक्सिस पे उसका सर इफेक्ट मैंने आंसर 30 भेजा है, होगा. करेक्ट है. not exactly. So देखिए अभी मुझे पता था कि force ये है. Now I'll remove the force and what I'll find its two components. So this हाँ. component, two components. Now how to calculate the component? I already explained. जिसके साथ theta given है, so उसके साथ आएगा f into cos theta. So it is 60 degree. So how much is f? 60. What is the value of cos 60? 1/2. 1 by 2. So 1 by 2. yeah, this will become what? 30. 30. Clear? Now the previous force which was pushing it this side, it is F is equal to 20. Now what is this force? Upward force F into sine
60 degree. 60 degree. So it will be f is 60. Now sin 60 is root 3 by 2. So it will become 30 into root 3. Done? Okay. So ये हमने फोर्सेस कर लिए हैं. अभी बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अगर हम देखें तो कौन सा फोर्स लगता है ऊपर की तरफ? एक नॉर्मल और नीचे की तरफ क्या लगेगा? एक ग्रेविटेशन force, its weight which is mg. Now point is कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा क्या? नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं. थोड़ा ना जाएगा, हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना. सो द एक्सेलरेशन इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो द एक्सेलरेशन is in horizontal direction. इसका मतलब क्या होगा यार? एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मतलब हमें नेट फोर्स चाहिए होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. सो व्हाट आई कैन राइट नाउ इज दैट नेट फोर्स विल गिव इट mass into acceleration. Now what is the net force in horizontal direction? 30 is forward and 20 is also pushing it in this side. So what it is now? 30 plus 20 okay, the mass is 10 kg and the acceleration, so I'll say 50 divided by 10 will be our acceleration. So it is 5. So the acceleration is 5 meter per second square. First part most of the student has got it correct. That's good. Abhi देखें, acceleration is good. Now what about the normal reaction? Now what will be the normal reaction from the figure? What you will suggest? What will be the normal reaction? Yeah. 100 minus 30 root 3. Okay, पहले मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ. mg will be 10 into 10, so it will be 100. अभी पॉइंट ये है कि बैलेंस किसको कौन करेगा? ऊपर की तरफ क्या है? मैं लगाना चाह रहा हूँ बैलेंसिंग द फोर्सेस. तो बैलेंसिंग द फोर्सेस का मतलब क्या है? आपके जितने फोर्स हैं इक्वल टू होने चाहिए डाउन वाले फोर्सेस. याद है बैलेंसिंग? यस सर. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर अप में कौन लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है. और कौन लग रहा है? ये वाला फोर्स. दो लोग अप लग रहे हैं ना. हाँ. यस So सर. it is 30 root 3. Now what is the down force? It is 100. 100 न्यूटन. Yeah, so now the normal reaction will be, it will be 100 minus 30 root 3. और अभी कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया था कि रूट 3 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी. व्हाट इज द वैल्यू? 1.73. अभी कुछ स्टूडेंट पूछेंगे सर 1.732 यूज करना चाहिए क्या? हाँ कर सकते हैं, मैटर नहीं करता है. आप कुछ भी यूज कर ले, पूरी वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर ही मिलेगा क्वेश्चन में. ओके, सो वेरी गुड साइली, इट वाज करेक्ट. द नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाई करना है और सबट्रैक्ट कर देना है. समझ आया सबको? सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. माइनस, सो 339, so it is 51.9. so the normal reaction will be 48.1. clear? तो इस तरीके से हम डिस्कशन कर सकते हैं. किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर. या सो अब आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर लेट्स से आंसर 48.03. तो ये तब आएगा जब हम इसे 732 ले लेंगे. ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेट देखना है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक करनी है, वही बेटर रहेगा. सो सबको ये समझ में? मतलब एग्जाम में 48 दिया होगा. अरे यार एग्जाम में जो दिया होगा आपको समझ आएगा. एग्जाम में हो सकता है ये दिया हो सकता है ये दिया हो, मे बी ये दिया हो. हाँ. आपको गेस करना है. अच्छा, व्हाट कैन बी द रीजन कि सपोज आंसर ये दिया है 47.95 लेट्स से. क्या ये पॉसिबल है? हाँ. कब? हाउ इट इज पॉसिबल? ये वैल्यू मैक्सिमम तो 2 तक जाएगी ना, और 2 लेने पे आंसर आता है 48.03 समथिंग. बताओ. सर और एक डिजिट यूज कर सकते हैं ना? चलो एक और डिजिट भी यूज करोगे तब भी 47 तक तो नहीं जाएगा. कोई और बता हाँ. सकता है कि यहाँ पर अभी क्या चेंज? नहीं,
1.7 लेने पे भी नहीं जाएगा। सर अगर हम ग्रेविटेशन का 10 नहीं लेंगे तो? वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। यार समझना है आप लोग को, मैंने बार बार बोला था दैट आई टेक जी फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, बट एग्जाम में हाँ बहुत टाइम 9.8 लेके ही कर सकता है, इवन 9.8 भी लेता है कई बार। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि 100, ये आंसर 100 से कम हो सकता है। हाउ मच इट कैन बी? इट कैन बी 98.1। हाँ क्लियर? तो ऑटोमेटिकली आंसर इवन 47 तक जा सकता है। सो आपको हम्म, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, बट आई गारंटी कि एग्जाम में कभी इस तरह की क्लोज आंसर नहीं आएगा कि एक आंसर है 47.6 और एक आंसर है लेट्स से 47.9। इतना क्लोज नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो वो दिखाई लिखेगा कि गिवन है जी इज 9.8 और जी इज 10, गिवन होगा आपको कि विच वैल्यू यू नीड टू कंसिडर। सो आई गेस द आइडिया इज क्लियर टू एवरीवन कैसे करना है ये। सर लेकिन हमें यूजुअली क्या यूज करना है, 10 या 9.8? यही तो मैं बोल रहा हूँ, you need not to be rigid with your concepts. I told you as per the options you need to determine what you will be taking. 10 use हाँ करना है या 9 use करना है, it is dependent on question. So I am telling you that the options are never that close कि आपको प्रॉब्लम हो 10 and 9 पॉइंट में, so then you must take ना 10, इजी रहेगा। हाँ क्लियर? बाद में थोड़ा वैल्यू एडजस्ट कर लेंगे 9 पॉइंट के अकॉर्डिंग। सोचो ना, अगर मुझे 9.8 लूंगा तो ये वैल्यू थोड़ा लेस हो जाएगी, इसका मतलब माई आंसर शुड बी, एग्जैक्ट आंसर शुड बी अ लिटिल लेस देन माई आंसर ना। हाँ चले, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देन। सर मुझे एक जनरल डाउट है। पूछिए। फिगर में दिया था कि एफ 60 न्यूटन का लग रहा है 60 हाँ डिग्री पे। तो सर अगर हाँ। हमने एडअप किया तो ये 30 हम्म। प्लस 51.9 मतलब 61.9 लग रहा है ना, तो 1.9 न्यूटन। व्हाट एक मिनट व्हाट एग्जैक्टली? सर 60 आपने एंड हाँ 60 दिया है ना, हाँ। अगर हमने कंपोनेंट्स निकाले तो उनका समेशन 61.9 आ रहा है। तो सर 1.9 न्यूटन फोर्स आया 61.9। कहाँ से? अरे आई टोल्ड यू द कंपोनेंट्स आर एट 90 डिग्री, यू कैन नॉट डायरेक्टली ऐड दिस। हाँ कंपोनेंट्स आर एट 90 डिग्री, डायरेक्ट कैसे ऐड कर दोगे? कैसे ऐड करना है? 30 स्क्वायर प्लस 30√3 का स्क्वायर, यस। इट विल रिजल्ट इन 60। सॉल्व करके चेक कर सकते हो। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, एक ऐसे ही क्वेश्चन दे देते हैं, लेट्स सी। ओके गुड सैली, वेरी गुड समीक्षा, आदित्य, वेरी गुड।
Very good, Adit. Okay. So let me identify a common doubt here. सपोज ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, सो सबसे पहला कॉमन डाउट आता है बहुत सारे स्टूडेंट को, सर ये 60 है और ये 30 है, क्या हमको इनका रिजल्ट फोर्स निकालना चाहिए क्या? मुझे नहीं लगता सर हमें Fnet. निकालना चाहिए। नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एफ नेट विल बी रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, सो नो नीड टू सॉल्व दिस, नो नीड। क्लियर? कोई भी जरूरत नहीं है यार इसको सॉल्व करने की। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्शन वाइज फोर्स देखना होता है ना, ऐसे एंगल पे तो देखना ही नहीं होता है, तो इसको हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है नेट फोर्स। द क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, द क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन सिंप्लीफाइड मैनर। ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है एंड द केस इज वेरी सिंपल, ये 60 है एंड ये 20 है, सो व्हाट इज द नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल? Net, 40। yes, 40. net force in horizontal direction, horizontal direction. So it's very simple now. I can just say F net is M into A. Clear? So it will be net force is 60 minus 20, and this will be mass is how much? 5 into acceleration. So it will be 40 is equal to 5 into acceleration. So acceleration will be 40 divided by 5. So which is 8. 8 So acceleration is very clear, 8 meter per second square. Now, what about the normal force? ये भी already simplified है. This सर force is 50 minus 30 30. Yes, this force is 20. normal. And what is the downward force? It is weight. It is mg. So by taking g as 10, I'll say it is 50. So what is the balancing status now? F upward is equal to F down. So F up में कौन कौन है? Normal and 30 है, और down में कौन है? 50 है. So what will be the normal? 50 minus 30. So it is 20. 20 Newton. So I guess ये simplified version था. ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया because there was no need to again find the net force, क्योंकि हमें already horizontal और vertical direction का अलग अलग चीजें दी हुई थी. तो I guess on a single object आप लोग निकाल लेंगे. Clear? सर सिस्टम में हाँ, सिस्टम का भी डिस्कस करते हैं, अभी सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सर वो रिक्वायर्ड के बाद क्या है? थ्रो आंसर इन द टेक्स्ट बॉक्स. ओके, लेट्स सी किसको आइडिया लगता है ये क्वेश्चन. सिंपल है बट लॉजिक जरूरी है. लेट्स सी. And one more thing यार, take g as 10. Do not ask me like this यार. Consider it is given g is equal to 10. Gautam not correct. Small technical mistake is there. Very good Adit, very good. That's correct. Vishwadeep not correct.
check again. A minor mistake is there, silly mistakes, which I expected you to done. Sally, same silly mistake is there. Sanskar, same mistake. Till now, only Aditya has given the correct answer. Rest of you are making the same mistake. Samiksha, you multiplied the mass in grams only. I already explained, do not multiply mass in gram. Convert it in kg. The rest answer is good. Ansika, silly mistake is there. The rest answer is fine. Try to find out the silly mistake everyone is making. Siddesh, not correct answer. Okay, let me explain. First thing first, कि कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर रहे हैं क्या, मास की। मास कितना है? 500 ग्राम। सो 500 ग्राम नहीं लिख सकते ना, हमें केजी में लिखना 1/2 पड़ेगा न्यूटन। सर मेरा आंसर करेक्ट है। ऑल राइट, वुशदीप नहीं। सो 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केजी में। सो ऑल राइट कि इन टर्म्स ऑफ केजी इट इज हाफ केजी। क्लियर? ओके, उसके बाद देखते हैं कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। देखो, फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बार बार देखो, जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दिया हुआ है कि यार लेट्स से इसका मास m है, हमें इसे कहाँ फेंकना है? ऊपर। ऊपर। कितना एक्सेलरेशन चाहिए? 2 का। तो इसका मतलब ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम लोग ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो एक फोर्स तो हमेशा अपोज करेगा, कौन सा? ग्रेविटी वाला, जो ग्रेविटी वाला mg तो लगेगा ही ना। हमें एक्सेलरेशन 2 का चाहिए, तो क्या पैटर्न होना चाहिए? दैट नेट फोर्स मस्ट बी इज इक्वल टू m इंटू ए। नेट फोर्स कौन लगाएगा? F माइनस mg लगाएगा ना भाई, माइनस अपोज करेगा ना mg। mg कितना है? 1/2 इंटू जी कितना है? 10। तो कितना है mg का फोर्स? 5 न्यूटन। तो इसका मतलब होना चाहिए फोर्स कैसे लगना चाहिए? F ऊपर जा रहा है, माइनस mg वाला फोर्स अपोज कर रहा है। तो माइनस mg वाला फोर्स अपोज कर रहा है इज इक्वल टू m इंटू ए। तो F हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है। mg वाला फोर्स है 5 न्यूटन, मास अभी 1/2 है, और एक्सेलरेशन कितना है? 2। दैट मीन्स इट विल बी F माइनस 5 इज इक्वल टू 1। सो ये ऐड होगा, फाइनल फोर्स कितना आ जाएगा? 6 न्यूटन। सो आदित्य का आंसर करेक्ट था और किसी ने करेक्ट नहीं दिया। कुछ लोगों ने 60 आंसर दिया है। किसका आंसर 60 आया था? व्हाट मिस्टेक डिड यू मेक? सर वो वेट को 0.05 kg ले लिया था। ओके, सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर मुझे पॉइंट्स में लिखना है सो आई विल राइट 0.5 kg। और मैंने बताया भी, इंस्टेड ऑफ पॉइंट दिस फ्रैक्शन पैटर्न इज बेटर। कैंसिल हो जाता है। या सो इट इज बेटर इन सॉल्विंग। कोई बात नहीं। अभी Sir, आपको समझ आया क्या क्वेश्चन? या मैंने कैसे सॉल्व किया था? हाँ वेट एक्सर्ट करेगा फोर्स 5 न्यूटन का ना, हाँ, तो डायरेक्टली नॉर्मल फोर्स 5 हो जाएगा, और F इक्वल्स ma से हाफ इंटू 2 1 निकाला, फिर 5 नॉर्मल + 1 6 चलेगा, बट नॉर्मल यहाँ पे आएगा ही नहीं ना। थ्रो कर रहे हैं, कांटेक्ट है क्या? नहीं। नॉर्मल की बात ही नहीं है ना। आपको नेट फोर्स बोलना है कि ग्रेविटी पुल कर रही है 5 से। अगर आपको थ्रो करना है तो 5 से ज्यादा करना पड़ेगा ना। और आपने F इज इक्वल टू ma से निकाल लिया कि लेट्स से मास है 1/2 और एक्सेलरेशन है 1। आपको कितना एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए? 1 1 न्यूटन का। न्यूटन एक्स्ट्रा चाहिए। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। एक्स्ट्रा कितना चाहिए? सो एक्स्ट्रा हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास इज हाफ, एक्सेलरेशन इज 2, सो विच मीन्स आपको 1 न्यूटन एक्स्ट्रा चाहिए। ऑलरेडी 5 न्यूटन लग रहा था। सो दैट मीन्स आपका नेट फोर्स कितना होना चाहिए? इट मस्ट बी 5 + 1। हाँ, मैंने ऐसे निकाला। ऐसे भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, बट ऐसे भी प्रॉपर वे पे हम देख सकते हैं कि व्हाट इज द नेट फोर्स। हम करिए यहाँ पर वही कर रहे हैं, बट ये थोड़ा सा मैं वेल प्लान्ड मैनर पे यहाँ पे कर रहा था। तो आपको समझ आया क्या नेट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन नहीं होती है क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है। इट हैज नो इफेक्ट। सिर्फ क्या जनरेट करता है? ये नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। बट
व्हाट अबाउट इन वर्टिकल डायरेक्शन, हमें ग्रेविटी का अपोज भी हैंडल करना पड़ता है। पक्का सबको समझ आया? एक्सक्यूज मी सर, या सर मुझे वो F माइनस एम जी समझ नहीं आया वो क्यों लिया। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि हमें एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है, अपवर्ड थ्रो करना है, तो मतलब हम ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, यस बट ग्रेविटी विल ऑलवेज अपोज ना, ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगी। यस सर। What will be our net force? Net force will be ये जो हम ऊपर लगा रहे हैं माइनस अपोज ऑफ ग्रेविटी, दैट विल बी अवर नेट फोर्स ना, which is going to move it upward. So I'll say this is our net force. So net force will be this force minus the force of gravity. Clear? यस सर, अंडरस्टूड। Okay. So I guess I need to give one more example. वो और better clear हो जाएगा। Done? हाँ ओके, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया थ्रस्ट फोर्स। क्या यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स के फॉर्मूले का कुछ काम है क्या? नहीं, मैं No. नहीं पूछ रहा हूँ कि इंजन थ्रस्ट कैसे अप्लाई कर रहा है। आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट हाउ, आई जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ओनली। तो वो हम नॉर्मल फोर्स से भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब फोर्स मेथड से फाइंड कर सकते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट हाउ दिस विल जनरेट दिस मच ऑफ फोर्स, आई जस्ट want the value, how much force is required. Anshika, not correct. Samiksha, very good, correct. Siddesh, not correct. Good. Sally, correct. Adit, correct. Gautam, it's not correct. Okay, from different answer, I can see you are making, everyone is making, most of you are making the similar mistake. यार अगर किसी को ग्रेविटी को अपोज करके जाना है, so you need extra force ना. Why the answer will be same as just F is equal to ma? No, this F is equal to ma is what? Extra force, extra, apart from the gravity. Okay, this is extra force apart from balancing the gravity or countering the gravity. ओके, तो ये ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए है। सो सपोज एक रॉकेट है और हमें पता है कि उसको ऊपर की तरफ किसी एक्सेलरेशन से जाना है 5 से, ठीक है। तो पैटर्न बार बार सेम मैं वही बोल रहा हूँ कि द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड इज 5। तो अगर आपको 5 मूव करना है तो एक चीज आपको बच के रहना पड़ेगा, दैट वेट इज mg। हाउ मच इट इज 100 into 10, so that means 1000 force will counter first,
then extra force is required. Clear? So ये थोड़ा सा याद रखना है, F must be greater than mg. अगर मुझे ऊपर उठाना है mg से ज्यादा ही लगाना पड़ेगा. So F extra कितना है, कितना एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन. कितना मास है 100 इनटू एक्सेलरेशन 5, कितना एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा 500. 500 न्यूटन. ग्रेविटी भी तो था ना. सो एफ नेट फोर्स कितना लगेगा हमें अगर एफ निकालना है. सो एफ विल बी, ग्रेविटी का अपोज करेंगे प्लस एक्स्ट्रा 500 भी लगाएंगे. सो यू मस्ट आंसर द 1500. सर मैंने यही किया है. यस सर मैंने भी। ठीक है, सर मैंने अपनी वो टेक्निक बताई थी वो की। हाँ चलेगा. तो ये एक पार्ट हुआ कि एक्स्ट्रा के फॉर्मेट में. दूसरा पैटर्न क्या है, आई कैन जस्ट से कि व्हाट इज द नेट फोर्स. सो नेट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन and net force is going to create this acceleration. So let's see from this technique that net force will give us mass into acceleration. And how to calculate the net force? It is total force minus the force of gravity will give us mass into acceleration. So the force will be, mass into acceleration is 1000 is equal to, it is 100 into 5. So by adding also we will find that the force required is 1500 Newton. So you can solve it either way. नेट फोर्स करके भी आप बोल सकते हो या फिर आप एक्स्ट्रा वाले लॉजिक से भी कर सकते हो. पक्का सबको भी समझ आया फोर्सेस से एक्सेलरेशन कैसे निकालना है फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट? डन? यस सर। ओके गुड. अभी लेट्स फोकस ऑन द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अभी तक हम क्या बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट के लिए, अभी हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट में भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, वहां पे भी काम करेगा ना पूरा फोर्स. एफ इज इक्वल टू क्या लगेगा, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन. बस एक्सेलरेशन। आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अब मास किसका यूज करेंगे, सिस्टम का, इनटू एक्सेलरेशन. क्लियर है सबको? तो सीधा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. सो लेट्स सी फ्रॉम द एग्जांपल. ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या, एक्सेलरेशन ऑफ 30 kg ब्लॉक का मुझे सोचना चाहिए क्या, कोई टेंशन वाली बात है क्या? नहीं भाई, जिस स्पीड से पूरा सिस्टम जाएगा वही तो इस 30 वाले का भी एक्सेलरेशन होगा ना. सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट बी ओके इज दैट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज द एक्सेलरेशन ऑफ ईदर 30 kg और एक्सेलरेशन ऑफ 50 kg. क्लियर? डन? यस बट सर। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं कर देना है कि आपको पूछा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ 30 kg, तो आप क्या कर दो, आप ऐसे कर दो क्या, फोर्स ओवर मास ऑफ 30 kg. फोर्स कितना है 40 और 30 kg का मास हो गया 30. ये नहीं कर देना. क्लियर? रॉन्ग है. क्या निकालते हैं हम, एक्सेलरेशन हम किसका निकालते हैं, सिस्टम का. सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं. ऐसे किसी सिंगल ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं निकालते हैं. बट हमें पता है कि ये पूरा सिस्टम जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से तो 50 और 30 जाएंगे ना. एम आई क्लियर विद दिस? कि जो हाँ सर। पूरा सिस्टम जाएगा वैसे ही 50 जाएगा, वैसे ही 30 जाएगा, अदरवाइज ये दोनों साथ में रहेंगे ही नहीं.
सो अगर वो दोनों साथ में चल रहे हैं विच मीन्स बोथ आर मूविंग विद द सेम। सो ये रॉन्ग मेथड होगा, याद रखना है। हम कैसे निकालेंगे? सिस्टम से निकालेंगे। सिस्टम सिस्टम क्या हो जाएगा? नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ व्हाट? सिस्टम। सो व्हाट इज द नेट फोर्स? 40 and mass of the system is 80 kg. 50 plus 30, it is 80 kg. So it is 40 divided by 80. So the answer is 0.5 meter per second. Yeah. So acceleration of system is 0.5. बट मैंने अभी जस्ट बताया कि क्वेश्चन में किसका पूछा हुआ है? 30 kg का। सो मुझे पता है बोथ विल हैव द सेम एक्सेलरेशन as they are moving together. So they will have same acceleration as they are moving together. Clear? So they are moving together, that's why they will have the same acceleration. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा 30 kg. So acceleration of 30 kg block क्या हो जाएगा? सेम 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी को डाउट इसमें कुछ? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? सर नो। ओके गुड। अभी मेन बात पे आते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स। ये यार बदल जाएगा यहाँ पर। देखो नॉर्मल फोर्स कैसे होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से ध्यान दें। क्या आपने देखा ये फिगर बना था, ये 50 kg है और ये 30 kg है। क्लियर? बताओ कितने नॉर्मल लग रहे होंगे? कितने कांटेक्ट आपको दिख रहे हैं? एक कांटेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर? यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, एक कांटेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, और एक कांटेक्ट ये वाला भी इन तो दोनों के आपस में। इनके भी तो नॉर्मल ऐसे ऐसे एक्ट करेंगे। अच्छा, नॉर्मल का नेचर कैसा होता है? बैलेंस वाला। पुशिंग पुशिंग बोथ ऑब्जेक्ट्स, याद है? अपोजिंग, यस। हाँ। सो नॉर्मल का काम होता है पुशिंग बोथ ऑब्जेक्ट्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनको अलग से फिगर बनाऊं तो देखो अलग से फिगर कैसे होगा। नॉर्मल इसे पुश करेगा इस तरफ, डन। इसको पुश करेगा इस तरफ, डन। क्लियर? और दो नॉर्मल ऐसे लगने ही वाले हैं। ये मान लेते हैं N1 है और ये मान लेते हैं N2 है। क्लियर? समझ आया सबको? और इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल लगेगा N। बताओ इसमें कोई भी डाउट किसी को? सर आप फिर से वो एक्सेलरेशन सिस्टम बता सकते हैं क्या? मेरा कनेक्शन में है। यार थोड़ा सा ट्राई करें कि बी इन अ बेटर प्लेस। देखें हाँ सर। सिस्टम का एक्सेलरेशन हमें चाहिए कि टोटल जो नेट फोर्स होता है उससे हम निकालते हैं सिस्टम का एक्सेलरेशन। सो सिस्टम का एक्सेलरेशन आता है नेट फोर्स से, मतलब सिस्टम का मास और सिस्टम का एक्सेलरेशन, इस तरीके से। तो कभी भी अगर हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन चाहिए ए सिस्टम, तो हम देखते हैं व्हाट इज द नेट फोर्स ओवर मास ऑफ टोटल सिस्टम। टोटल सिस्टम का मास हम डिवाइड करते हैं, उससे हमें एक्सेलरेशन आ जाता है। तो इस सिस्टम में rather than finding separately 30 kg and 20 kg, हम क्या करेंगे? सिस्टम के थ्रू फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन 30 और 50 kg का। ठीक है? सो सिस्टम हमने सीधे किया कैसे? फोर्स अपॉन टोटल मास, और वो वैल्यू आ गई। अच्छा, ये क्यों रॉन्ग है? बिकॉज दिस F इज नॉट एक्टिंग ऑन 30 kg। क्लियर? तो यहाँ पर फिगर देखें, फिर ये देखें ये फोर्स किस पे एक्ट कर रहा था? 50 पे। कितना था ये फोर्स? 40 न्यूटन। ओके, तो ये एक फोर्स है दैट इज 40 न्यूटन। समझ आया सबको? फिगर समझ में आया? अभी बताओ कौन सा फोर्स मिसिंग है? अभी मैंने क्या ड्रॉ नहीं किया? नॉर्मल। नीचे का Sorry, नॉर्मल। gravity। ग्रेविटेशन ग्रेविटी नहीं ड्रॉ किया यार अभी। mg। सो कितना हो जाएगा mg? 5 वाले का 500। 500 न्यूटन। इसका क्या हो जाएगा? 300 100 न्यूटन। यस, तो इसका हो जाएगा 300 न्यूटन। डन? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? यस सर तो मैं सारी चीजें लिखता हूँ। देखो
अगर मैं बता रहा हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल n1 की वैल्यू बताओ, डायरेक्ट बता सकते हो ना आप? हाँ n1 की 500 कितनी हो जाएगी? सॉरी 300 300 न्यूटन, और ओके, n2 500 न्यूटन n2 कितना होगा? 500 300 न्यूटन। 200 न्यूटन। इसलिए न्यूटन। मैंने क्वेश्चन में आपको n2 और n1 नहीं पूछा है, हमने बीच वाले नॉर्मल का डिस्कशन करना है। तो बीच वाला नॉर्मल तो हॉरिजॉन्टल में एक्ट कर रहा है ना, क्लियर? तो मेन इंपॉर्टेंट है बीच वाला नॉर्मल। अब उसे कैसे निकालेंगे? तो उसे निकालेंगे नेट फोर्स के लॉजिक से। याद आ रहा है नेट फोर्स? ये 50 हाँ kg है और ये 30 kg है, क्लियर? दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द नेट फोर्स फॉर बोथ? तो देखो मैं दोनों को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 50 kg को भी सॉल्व करूंगा और 30 kg को भी सॉल्व करूंगा। अच्छे से देखिए, 30 kg पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ n, क्लियर? दिख रहा है? 50 kg पे कौन लग रहा है? n लग रहा है और 40 भी लग रहा है। अब बताओ जा किस तरफ रहे हैं? 50 kg किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट या राइट? राइट, सब राइट इसमें की जा रहा तरफ। हमने चेकिंग भी किया था अभी। किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? है 1/2। 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, ये भी आगे जा रहा है सेम एक्सेलरेशन से। हाँ तो चलो देख लेते हैं नेट फोर्स का लॉजिक क्या होता है। एफ नेट इज इक्वल टू एम इन टू ए। बताओ नेट फोर्स क्या होगा? 40 वाला आगे की तरफ डोमिनेट करेगा और अपोज करेगा नॉर्मल, इज इक्वल टू मास कितना है 50 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस एन इज इक्वल टू 25। सो एन इस तरफ आएगा, एन इज इक्वल टू कितना दिखेगा 40 माइनस 25। बताओ नॉर्मल कितना आ गया? 15। क्लियर? लेट्स सी द सेम पर्सपेक्टिव फ्रॉम 30 kg। 30 kg को नेट फोर्स कौन दे रहा है? सिर्फ नेट फोर्स में कौन है? एक ही फोर्स तो है ना, कौन है वो? एन। और कोई फोर्स है क्या 30 kg में? Only n is there. So n will give its m into a. What is the mass? 30. What is the acceleration? 1/2. So the value of n is 15. So it's better to solve the value of n from 30 kg. मैंने आपको दोनों explain किए हैं because this is the first question, so you get a better idea. That's why I explain everything. But it's better to solve from 30 kg. तुरंत क्विकली पता चल गया। तो अभी कुछ आपको समझ आया कि बीच में उनके 50 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो मैं आपको फील कराता हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली समझेंगे क्या होगा। सिनेरियो कुछ ऐसा हो रहा है कि ये बॉक्स को जब आपने 40 से पुश किया तो इस बॉक्स ने ये छोटे वाले बॉक्स को किससे पुश किया? 15 से। और बिकॉज ये 15 से पुश कर रहा था, ये बॉक्स भी इसे पुश बैक करेगा 15 से। तो इसे नेट हाँ। फील कितना होगा? फील करेगा ये सिर्फ 40 25। माइनस 15, 25 फील करेगा। और ये कितना फील करेगा? फुल 15 फील करेगा। समझ आया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टेप की कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। तो देखें ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले एक्सेलरेशन। सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालेंगे, हाँ फिर बाकी सारे ऑब्जेक्ट को अलग अलग ड्रॉ कर देंगे। डन? और अलग अलग ड्रॉ करके हम वहां पर वैल्यू निकाल देंगे। समझ आया क्या? यस सर। हाँ So let's see with one example. सर ये 5 किलोग्राम में क्या ग्राम है? What do you think what it should be? What do you think what it should be? मिलीग्राम होना चाहिए क्या?
यार केजी के बगल में ग्राम क्यों रखूंगा मैं? ओके, सॉल्व इट। सर हमें क्या चाहिए? दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, बट बिफोर फाइंडिंग द नॉर्मल रिएक्शन वी नीड द एक्सेलरेशन आल्सो। ओके, सो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए था सबसे पहले फर्स्ट वर्क क्या, फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज कंपोनेंट। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, f इंटू कॉस 37। डन। व्हाट इज f 50? कॉस 37 कितना होता है? इट इज 4/5। या सो यू विल सॉल्व, यू विल गेट 40। Here it is, yes, it is f into sine 37. So 50 into sine 37 is 3/5. So you will get a force of 30. Now हमें acceleration निकालने के लिए net force चाहिए होगा. So I'll say F net is equal to mass into acceleration. So acceleration of system will be force net over mass net, or mass of the system I'll say. So it is mass of system. So what is the force? Net force in horizontal direction is 40 and the mass is 15. सर डाउट, Yeah, सर दिया है एक्स पूछिए। एक्सिस से और हमें फाइंड करना है एक्स एक्सिस से ही ना, तो हमें cos थीटा यूज करना होगा। हाँ सर। Means cos theta यूज किया नो ना? सर, अपने sin 37 सर वहाँ लिखा पे और साइन 30 लिखा। 37 है। आपने इधर 40 लिखा है लेकिन ऊपर रेड कलर में 30 लिखा है। ये ना, हाँ तो ये तो 30 ही आएगा ना। हाँ ये फोर्स, ये तो वर्टिकल का फोर्स है ना, हाँ ये तो 30 आएगा। हमें कौन सा फोर्स चाहिए? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हाँ, करने वो वाला है 40 ना, है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो तो उससे ही निकालेंगे ना। क्लियर? सो आंसर कितना आ जाएगा? 8/3। डन। सो पर्पस क्या था मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन देने का पर्पस था कि बहुत बार हमें आंसर लगता है कि आंसर स्ट्रेट आना चाहिए। स्ट्रेट आना मतलब कि ये 15 दिया है, सो बहुत बार आप लोग को क्या लगता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा होगा 30 और वर्टिकल आ रहा होगा 40, क्योंकि सम ऑफ यू 2-3 स्टूडेंट्स
You have given answer 2. Answer 2 कब आएगा? When you do it like 30/15. क्लियर? तो ये गलत है यार, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को डिफरेंटली सेट किया हुआ है. कैसे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40 आ रहा है इसका. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आंसर एकदम फिक्स आए. समटाइम्स आंसर कैन बी इन पॉइंट आल्सो. सर मैं गलती से sin cos के वैल्यू में भूल गया. ओके, साइन कॉस की वैल्यू यार देखो, याद रखो, मैं सर बार ये बार आया बोल था, रहा हूँ. मुझे लगा ये हाँ. गलती इसलिए मैंने टेक्स्ट ही नहीं की. अच्छा, अगर नेक्स्ट मंडे टेस्ट है, मुझे एक बार शेड्यूल देखना पड़ेगा. नेक्स्ट मंडे टेस्ट है तो मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा. प्रीवियस सिर्फ लॉज ऑफ मोशन से ही रहेगा और मोस्टली कवर होगा दिस लेक्चर नंबर 5 एंड 4 जो भी रिसेंट लेक्चर होंगे. सर वो ओके, स्प्रिंग का सिखाया हुआ नहीं आएगा? स्प्रिंग का सिखाया हुआ नहीं आएगा अभी. सर अभी तक जितना भी सिखाया है वो सब राइट? मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा. आई पोस्ट विच टॉपिक्स विल बी देयर. ओके, विच लेक्चर्स विल बी देयर, वो आप देख लेंगे. सो ये क्वेश्चन अभी समझ आया कि एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं. नाउ अभी हमें नॉर्मल निकालना है तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा ना, अलग अलग ड्रॉ करेंगे. तो ये 5 kg वाला हो गया, ये 10 kg का हो गया. डन. दोनों नॉर्मल एक दूसरे को पुश करेंगे. ये पुश करेगा इधर, ये पुश करेगा इधर. क्लियर? इस पे दो फोर्सेस लग रहे थे, याद है मैंने कंपोनेंट करके देखे थे. वर्टिकल वाला फोर्स कितना था? 30. और ये फोर्स कितना था? 40. क्लियर? ये सेटअप हो गया. इन पे इनका mg भी लग रहा होगा, बट क्वेश्चन में मुझसे वर्टिकल वाला नॉर्मल नहीं पूछा है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं टू फाइंड इन फाइंडिंग वर्टिकल नॉर्मल. क्लियर? मुझे कौन सा नॉर्मल पूछा हुआ है? इन बिटवीन वाला. हाँ. क्लियर? सो हमें ये वाले नॉर्मल में इंटरेस्ट दिखाना है मेन. अब बताओ किस ऑब्जेक्ट में फाइंड करना इजी लग रहा है? 10 kg में या 5 kg में? 10 kg में. 10 10 kg. kg. सिर्फ नॉर्मल लग रहा है, बट आई सॉल्व फ्रॉम बोथ द क्वेश्चंस. इस पे एक्सेलरेशन कितना है? 8/3. और इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 8/3. सो वी कैन सॉल्व इन ईदर ऑफ द ब्लॉक्स. सो लेट्स से दोनों को सॉल्व कर लेते हैं सेपरेटली. 10 kg वाले को देखेंगे तो इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज नॉर्मल. सो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू m into a. So the net force is normal, m is 10, a is 8/3. So the answer will be 80/3. 80/3. Okay, let's solve from this side. 5 kg वाले पे इधर कितना लग रहा है फोर्स? 40 का. इधर कितना लग रहा है? n. So f net is equal to m into a में f net किधर हो जाएगा? 40 पुल कर रहा है, n अपोज कर रहा है, is equal to m into a. 5 into acceleration कितना है? 8/3. सो n इज इक्वल टू 40 माइनस ये मल्टीप्लाई करें. 5 into 8 कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 3. सो अभी इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर दें नॉर्मली, तो कितना हो जाएगा? इट विल बी 80/3. 80/3. तो मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कई बार आप लोग को, बट मैं फिर से बताता हूँ कि व्हेन देयर इज वन फ्रैक्शन एंड वन इज इंटीजर, मतलब आपको कभी सॉल्व करना है लेट्स से x प्लस वाई बाई जेड, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. टू सर दिस हम डायरेक्ट ZX कर सकते हैं. सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? z को मल्टीप्लाई कर दो इधर. सो इसे हैबिट में लाना है ऐसे से. xz प्लस वाई एंड डिवाइड बाई z. सर वो वर्टिकल का पूछा हो तो कैसे निकाले? वर्टिकल का पूछा हो तो कैसे सर निकालें? 20 आएगा 5 kg ब्लॉक के चलो लिए. ठीक है भाई, अभी बोल रहे हैं तो वर्टिकल भी निकाल ही लेते हैं. क्लियर? वर्टिकल भी निकालते हैं. चलो इस पे कितना लगेगा? mg. 5 kg पे ये mg लगेगा w कितना होगा? 50. 50. 50 और इस पे कितना लगेगा? 100. 100. क्लियर? ये हो गया दोनों के वेट. अब दोनों के नॉर्मल बना देता हूँ मैं. तो इसका नॉर्मल हो जाएगा इस तरफ, लेट्स से इट इज n2, और इसका नॉर्मल हो जाएगा दिस इज N1. n1. तो अभी फिगर से देख के बताओ n1 कितना हो जाएगा? 100. 100. n1 को बैलेंस करना है, ये हो गया 100. लेकिन इधर पे देखो ना, दो लोग हैं, 30 भी है और n2 भी है. अब बताओ एरो देख के क्या लग रहा है? 30 डाउनवर्ड पुश कर रहा है या अपवर्ड? डाउनवर्ड. लग रहा है तो डाउनवर्ड. ऐसे फिगर में बना देता हूँ. ये सरफेस जरूर ऊपर लग रहा है, बट इट इज पुशिंग इट डाउनवर्ड. ग्रेविटी इज 50, दिस 30 is also pushing it downward, while I know the normal is upward.
N2. So what will be the scene? F up is equal to F down. Clear? So what are the down forces now? Up forces is only N2 and the down forces are 30 plus 50. 80. Yeah, 80 N2 will be 80. 80 ठीक है, N1 is 100, N2 is 80. तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि अप एंड डाउन क्या है. अप मतलब सरफेस अप नहीं, अप मतलब एरो से देख के बताते हैं कि अपवर्ड एरो है या डाउनवर्ड एरो है. तो मैंने सारे टाइप के नॉर्मल बता दिए हैं. तो ऑफ कोर्स हाँ. एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, किसी भी टाइप का नॉर्मल हम पूछ सकते हैं आपसे. क्लियर? सर या मैंने शेड्यूल को वेरीफाई कर दिया है. 7 सितंबर को हमारा 4 टेस्ट है. आई विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप. ठीक है, जो भी डिटेल्स होंगी हाँ. रिगार्डिंग द टेस्ट आई विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. सर चैट बॉक्स करना है. या एक्सेलरेशन एंड मोर इम्पोर्टेंट नॉर्मल. आई गेस एक्सेलरेशन में किसी को अभी डाउट नहीं होगा. आई एम इंटरेस्टेड इन नॉर्मल इन बिटवीन दिस इन दिस सरफेस. ओके, तो मैंने बताया फर्स्ट काम हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और ऑफ कोर्स सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिए हैं. एक्सेलरेशन सिस्टम का आ गया 5. अब मैंने बताया कि अगर सिस्टम का 5 आ गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक क्या आ जाएगा? सेम. कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर दिया, एक्सेलरेशन आपने निकाल दिया. अभी क्या करना पड़ता है? सेकेंड पार्ट, यू नीड टू ड्रॉ ऑल द फिगर सेपरेटली. क्लियर? सो 5 kg को अलग ड्रॉ करेंगे, 3 kg को अलग ड्रॉ करेंगे एंड 2 kg को अलग ड्रॉ करेंगे. डन. अब बताओ सबका एक्सेलरेशन कितना है? 5 kg कितना है एक्सेलरेशन? सेम 3. 3 क्लियर? सेम. इसके पास एक्सेलरेशन कितना है? 3. सेम. इसके पास भी एक्सेलरेशन कितना है? 3. अच्छा, फोर्सेस देख लेते हैं. इस पे फोर्स कितना लग रहा है? 30. ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो लेट्स से इन पे लग रहा है कुछ नॉर्मल, दैट इज लेट्स से N1. डन. तो इस पे N1 लग रहा है और इस पे भी N1 लग रहा है. यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल, दोनों को पुश करेगा. सो लेट्स से दैट फोर्स इज N2. सो बताओ हमसे क्या पूछा है? N1 पूछा है N2 पूछा है? N2 N2 पूछा हुआ है. चलो ठीक है, मैं I'll be solving all these 3 box. आपको एग्जाम में जो भी नेसेसरी हो, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप सिर्फ वो बॉक्स सॉल्व करेंगे. लेट्स से 5 के बारे में देखें. 5 के बारे में कौन सा फोर्स लग रहा है? इधर लग रहा होगा N1
और इधर लग रहा होगा 30। क्लियर सबको? अच्छा 3 kg का देखेंगे। 3 kg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? इधर लग रहा है कौन सा? N2 और इधर लग रहा है N1। कोई डाउट? 2 kg पे देखा, 2 kg पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? N2। तो बताओ N2 सबसे इजी किसका होगा नेट फोर्स? 2 kg 2 kg का। सिर्फ हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स की जगह पे क्या लग रहा है? N2 लग रहा है। कितना हो जाएगा? मास कितना है? 2 kg इंटू 2 एक्सेलरेशन kg कितना है? 3 3। सो N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 6 न्यूटन। न्यूटन। समझ आया? N2 की वैल्यू इजिली आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं नेट फोर्स। F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट बताओ N1 ज्यादा होगा या N2? N1। N1 ज्यादा N1 होगा ना, क्योंकि किस तरफ जा रहा है? ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, सॉरी राइट की तरफ जा रहा है ना। तो इसका मतलब हाँ N1 ज्यादा होगा। सो इट इज N1 माइनस N2 अपोज करेगा इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 3। सो ये आ गया 15। N2 कितना आया था? 6। सो यहाँ से N1 आ जाएगा। देखिए N1 कितना आ गया? 21। किसी को कोई डाउट N1? अच्छा हम इस फिगर से वेरीफाई भी कर लेते हैं N1 सही आया है या नहीं। F net इज इक्वल टू क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स कितना है? 30 आगे की तरफ लग रहा है, माइनस अपोज कौन कर रहा है? N1 इज इक्वल टू 5 इंटू, सॉरी माई मिस्टेक, ये मास 5 नहीं है, ये कितना है? 3। सो ये हो जाएगा 9। सो इसका मतलब ये कितना आ रहा है? 15 आएगा। सो ये 5 इंटू 3, सो इट इज 15, इट इज 30 माइनस N1। सो N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 माइनस 15। द आंसर विल बी 30 minus 15 which is 50। ये बताओ सबको समझ आया कि कैसे हम सिंगल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? डन? यस यस सर, सर। समझ में आ गया। पक्का ना? सर ये ओके। जो क्वेश्चन था उसमें कौन सा वाला पूछा था? N2 पूछा था। क्वेश्चन में हमने N2 पूछा था, क्वेश्चन में हमने N2 पूछा था, बट मैंने सारी चीजें सॉल्व की क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं ना। यस सर। As per the question, it asked between 2 and 3. So the answer for this question should be 6 Newton. Okay. यस सर। Okay. सो एग्जाम में सेम फिगर दे के दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके लिए रेडी रहेंगे। हाँ श्योर। एक और एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पर। ओके तो ये क्वेश्चन देखें यार, ये क्वेश्चन में मैंने एक नई चीज ऐड की है। इस बार हमने पुश करने की जगह क्या सिस्टम रखा है? पुल करने का सिस्टम रखा हुआ है। क्लियर? तो आपको पता है ना कि स्ट्रिंग का नेचर क्या होता है? दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? पुल। पुल करता है। नॉर्मल क्या करता था? पुश। ये स्ट्रिंग क्या करेगा? पुल करेगा। बट उससे भी पहले, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? सिस्टम। तो कितना हो जाएगा सिस्टम? 25 kg। 20। किस तरफ फोर्स लग रहा है पुलिंग का? इस तरफ। कितना? 15 न्यूटन। 50 न्यूटन। So what will be the acceleration of system? It is net force over सर इट विल बी mass of 2। the system. Yeah. So it is 50 divided by 25. So that is 2.
So if I ask the acceleration of individual, let's say if I ask of 10 kg or if I ask of 15 kg, the answer for both the objects will be same, 2 meter per second square. Any doubt till No. now? Yes, sir. Okay, so till this point no doubt. अभी क्या करना है, सिस्टम को अलग अलग करना है. तो क्या चीज याद रखना है, that string pulls both the objects, pulls both the objects. और नॉर्मल क्या करता है, दोनों ऑब्जेक्ट को पुश करता है। पुश करता है। पुश करता है. तो इसका मतलब अब अगर मैं फिगर बनाऊंगा तो देखना फिगर चेंज होगा. कैसे बनेगा, ये 10 kg है और ये 15 kg है. अब स्ट्रिंग इसे पुल करेगी अपने तरफ, इसको इस तरफ पुल करेगा और इसको इस तरफ. अगर नॉर्मल होता तो मैं कैसे लिखता, नॉर्मल ऐसे पुश करता और नॉर्मल ऐसे पुश करता. समझ आया? मतलब नॉर्मल दूर जाता है और ये स्ट्रिंग पास में लाती है। हाँ, स्ट्रिंग पुल करता है, नॉर्मल पुश करता है. मैंने ये पहले भी आपको लिखा दी हैं चीजें हाँ। फर्स्ट लेक्चर में. तो स्ट्रिंग में वर्ड आपको यूज किया होगा टेंशन. देखो टेंशन, सो टेंशन भी एक टाइप का फोर्स है, इसलिए हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से. सो टी इज अवर फोर्स. अच्छा, इस पे एक और फोर्स लग रहा था, कितना, 50 न्यूटन. हाँ, अच्छा, अभी दोनों बॉक्स किस तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ। आगे की तरफ, फॉरवर्ड. तो अभी दोनों बॉक्स को सॉल्व कर दो यार, जैसे पहले किया था. नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए. नेट फोर्स इसमें सिर्फ क्या लग रहा है, टी. 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 2. तो टी की वैल्यू 20 न्यूटन। न्यूटन. चलो यहाँ से लिख लेते हैं. इस पे नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए. इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, 50 इस तरफ और टी अपोज कर रहा है. सो क्या होगा नेट फोर्स, 50 माइनस टी। माइनस टी. एंड मास कितना है, 15. एक्सेलरेशन कितना है, 2. इट इज 50 माइनस टी इज इक्वल टू 30. तो टी विल बी 50 माइनस 30. देखो आंसर क्या है टी का, 20। 20। सो यू कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड. ये क्वेश्चन को समझाने का पर्पस पता है क्या था, सिर्फ आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है. तो क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू नॉर्मल. क्लियर? ये यस वाला सर। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. स्ट्रिंग होगी तो नॉर्मल जैसे पुश कर रहे हैं दोनों को, स्ट्रिंग कैसा करेगा, स्ट्रिंग ऐसे पुल करेगा दोनों को. क्लियर? यस सर। क्वेश्चन इट इज क्लियर. ओके हाँ। okay, so that's good. So regarding the test I'll post in the group. आज के लेक्चर में जो भी डाउट हो तो आप बताएं. आज समझ में आया सबको नेट फोर्स कैसे निकालना है, बाकी सारी चीजें. यस सर। Okay. Sir, Yeah, can you send a worksheet on this topic? like I told, for a particular topic is very small. अभी हमने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ हाँ. F is equal to ma सीखा ना. So I cannot get you a practice sheet on just a particular topic. I'll be giving it for the complete chapter when the chapter is over. So for now, solve all the questions in the lecture only. हाँ, मतलब लेक्चर क्वेश्चन से रिवाइज करना है। से अच्छे से रिवाइज करना है, get the concept properly and you will be able to solve in the test. हाँ। Okay, यस में सर। कौन से ये आ रहे हैं लेक्चर्स के? I'll inform in the group. Okay, bye bye everyone. ओके सर, बाय सर. Yeah, बाय bye bye. सर। थैंक यू Yeah. सर।